Okay. So yes, we're discussing about this fourth principle of learning. That learning criminal behavior involves the techniques and motives. Techniques, of course, as I mentioned to have the excellence, to have the expertise on any crime, there are certain techniques are required. Like shooting is a technique, pickpocketing is a techniques, stealing, burglary, trespassing. Okay, these are the other techniques that are fundamentally important. Okay, so the offender who actually who is influenced by someone through this interaction or communication must have one or the other techniques. He has learned that particular technique. Okay, so we have to be very very careful. We have to relate that idea that particular criminal. They always try to find maximum from that particular criminal and through this interaction. ये चीज आप ध्यान में रखें कि वो उसमें कोई ना कोई एक या दो कोई ना कोई टेक्निक होगी जो वो सीखेगा उससे. जब तक टेक्निक में एक्सपर्टीज नहीं होगी, that person may not become the expert on that particular crime. Okay, so motive is very fundamental as well as the technique of particular crime. Once he learn a motive, once he learn a technique, then the chances become higher on the part of the that person to involve in the crime. Okay, so these are the fundamentally important principles, the techniques and the motive. Of course, then and drives and rationalization and attitudes. Okay, इनको मैं एक साथ में touch कर रहा हूँ. The drives, rationalization and attitude. इससे मतलब that offender try to justify his act or action or behavior. ये भी सब सीखा जाता है basically. This again come in the process of learning criminal behavior. Okay. Now you see that most of the time we have one narrative, like honesty is the best policy. Okay, like people who are fundamentally uh, uh, stick with their principles. ओके, झूठ बोलना गलत है, गुनाह है. ओके, चोरी जायज नहीं है. ओके, ये सारे नैरेटिव्स होते हैं जो एक नॉन क्रिमिनल बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं. बट अ क्रिमिनल हैज अ डिफरेंट नैरेटिव. Criminal, because he has learned that narrative from that society, from that criminal world, and that narrative eventually guide him or push him to involve in a crime. Narrative क्या होता है? That आप जो कमजोर है उनका फायदा उठाएं. ओके, शॉर्टकट इज ऑफन ओके. ओके, तो ये जो नैरेटिव्स होते हैं कि आप जो लोग कमजोर हैं उनका फायदा उठाएं, या जो लोग खुद ही विक्टिम बनना चाहते हैं उनको विक्टिम करने का से कुछ नहीं होता, या कुछ ऐसे क्राइम हो जिनको आप जस्टिफाई करते हैं, अगर हम चोरी नहीं करें इट्स ओके, लेकिन अगर एग्री होके व्हाइट कलर क्राइम का आप नैरेटिव देख लें. एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी ठीक? सर मुझे आ कोई रही है. जी सर आ रही है. Yes, sir, आ रही है. Yes, ओके yes. ओके, एक आ एक रही ही है. बोल दे, एक ही बोल दे, ठीक है जी. तो यस, सो ये जो नैरेटिव है, जो बड़ा अहम नैरेटिव है यहाँ पे कि crime it may involve a certain type of skills. The motives is very important. The goal of the crime, the object, the prime object, the techniques of crime, the particular method of committing particular crime, then rationalization and justification of criminal behavior. जब तक आप justify नहीं करेंगे उस act को, you have more justification on the act, you may not encourage to involve in the crime. Okay, so these all are the important and fundamentally time principles of learning. Okay, उसके बाद point number 5, the specific direction of motives and attitude is learned from definition of the legal code as favorable or unfavorable. इससे मुराद इससे मुराद the specific direction of motives and attitudes is learned from definition of legal code as favorable. We have two definitions. One are definition जो क्राइम को अपोज करती है, they are basically opposing the criminal behavior. कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन है जो क्राइम को जस्टिफाई करती है. ओके, तो यहाँ पे जो बात हो रही है उन डेफिनेशंस की, फंडामेंटली माइक को ऑफ कर ले अपनी को, मेक श्योर यू हैव ऑफ योर स्पीकर. ओके, यहाँ पे बात हो रही है उन जस्टिफिकेशन की जो क्राइम को सपोर्ट करती है. ओके, अगर यहाँ पे अगर if I take it like that, the definition, the specific direction of motives and attitude is learned from definition of legal code as favorable or unfavorable.
Now if you have the sleeve on, there's a voice in background, still someone has not put their mic off. Please again recheck करें, अपने mic को off कर रखें. There should be a red line होनी चाहिए आपके mic पर. It should be off. Okay. A person become a criminal when there is an excess of definition favorable to violation of law over definition unfavorable or violation of law. Listen carefully. A person becomes a criminal when there is an excess of definition of favorable to violation of law over definition unfavorable to violation of law. This is the principle of definition. ये सबसे अहम प्रिंसिपल है इस थ्योरी का, जो बताता है कि जब एक्सेस और डेफिनेशन, जब ज्यादा डेफिनेशन क्राइम की वायलेशन को जस्टिफाई करे उन डेफिनेशन के जो क्राइम को जस्टिफाई नहीं करती, we become criminal then. Now देखें आपके पास through your process of learning हम तालीम भी लेते हैं, हमारी तरबियत भी होती रहती है, हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास जो बैड इन्फ्लुएंस होता है वो भी होता है. मे बी थ्रू समवन हु इज क्रिमिनल, he may be our close associate, peer, friend, colleague, fellow or any group partner. अब अगर अब डिसीजन क्राइम का या क्राइम इन्वॉल्व होने का डाई करता है कि हम किसका असर ज्यादा लेते हैं. अब जो अच्छे लोग हैं, द टीचर्स, योर पेरेंट्स, दे मे गिव यू अ गुड डेफिनेशन कि क्राइम नहीं करना, अच्छा बिहेवियर करना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मानना. ओके, वायलेंस इज समथिंग व्हिच इज हार्मफुल एंड रॉन्गफुल बिहेवियर. और हम उस वो डेफिनेशन सुनते हैं और वो भी हमारे जहन में बिठाते हैं, और हम वो डेफिनेशन भी अपने जहन में बिठाते हैं जो हमें ये बताती हैं कि there's no other choice, like honesty is not best policy. जब तक आप कुछ गलत नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं होगा. लाइक चोरी नहीं करें लेकिन व्हाइट कलर क्राइम ठीक है, ठीक है. जो लोग कमजोर हैं, लूजर्स हैं, उनका एडवांटेज लिया जा सकता है. जो खुद ही अपने आप को जो विक्टिमाइज करने के लिए पेश करें, इट्स ओके टू टेक एडवांटेज फ्रॉम देम. ओके. अब ये जो डेफिनेशन है उसका ड्रग में क्या होगा, वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, किसी और को क्या, तो फिर एडिक्शन इज ओके. ओके, एक बंदा सुसाइड कर रहा है, वो कह रहा है मैं अपनी जान ले रहा हूँ, सो उससे किसी और का क्या ताल्लुक, सो इट्स कंप्लीटली ओके टू टेक माय ओन लाइफ. ठीक है. ये सारी डेफिनेशंस हैं, देयर इज प्रो ऑफेंडिंग डेफिनेशंस जो हम सीखते हैं फ्रॉम दीज दोज ऑफेंडर्स, फ्रॉम दोज क्रिमिनल पर्संस. ओके. अब इसी तरीके से जब ज्यादा डेफिनेशंस हम सही समझ रहे हैं, हम उन डेफिनेशन को सही नहीं समझे जो क्राइम को जस्टिफाई नहीं करती, और वो डेफिनेशन जो क्राइम जस्टिफाई नहीं करती है वो हम ज्यादा सीरियस ले लें, तो फिर हम क्राइम की तरफ जा सकते हैं. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी, दैट द पर्सन हु इन्वॉल्व इन द क्राइम, once they have been influenced by the definition which are favorable in violation of crime. Okay. उसके बाद the next point, the differential association vary in frequency, duration, priority, and intensity. Like frequent context, long context, age, at first context, important और prestigious context. मतलब ये बड़ा अहम प्रिंसिपल है कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से क्रिमिनल से भी बात करें, चाय पिए और उससे मिले एंड यू लर्न क्राइम फ्रॉम द पर्सन. इट्स नॉट फंडामेंटली इंपॉर्टेंट. ठीक है. यहाँ पे जो भी स्किल्स अभी तक बात हुई उसमें टेक्निक्स हो गई, मोटिव, ड्राइव, रैशनलाइजेशन, इवन उसमें आपकी डेफिनेशंस, फेरेबल, अनफेरेबल, ये सब के सब हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या नहीं हो, फ्रीक्वेंसी नहीं हो, ड्यूरेशन नहीं हो, प्रायोरिटी नहीं हो और इंटेंसिटी नहीं हो. फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगा, हाउ फ्रीक्वेंट वी आर मीटिंग विद दोस पर्संस. बार बार एक बार एक बंदे से मिल जाना एंड ही इज अ क्रिमिनल एंड वी मे नॉट बिकम लाइक हिम, ऑफ कोर्स. बट इफ इट इज फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट, अगर बार बार हम उससे मिल रहे हैं, इट इज बीन अ लॉन्ग फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट है हमारा, तो द चांसेस बिकम हायर नाउ. तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हम उससे कुछ ना कुछ सीख लें. दैट मे बी क्राइम मोस्ट ऑफ टाइम इफ द पर्सन इज क्रिमिनल. ओके. लेकिन अगर वो कॉन्टेक्ट फ्रीक्वेंट नहीं है,
कभी कभी once in a while, once in a blue moon, very rare contact, तो फिर उसका असर हम पर इतना ज्यादा नहीं होता. तो remember, if the contact is frequent, the learning crime may be on. Okay. उसके बाद duration is very important. Frequency is of course very important, but duration is again a very important component here, component of learning time. अब duration से हम किसे हम कहते हैं? How long? Okay. और frequency क्या हुई? How often? Okay. और how long से मुराद कितना टाइम हम स्पेंड करें? अगर सिर्फ डेली है लेकिन 2-3 मिनट है, एक पड़ोसी who is a criminal, सुबह और शाम सलाम दुआ करते हैं, it's okay. It is not a long duration involved, like 1 घंटे 2 घंटा, तो इसका असर नहीं पड़ेगा. So again we have to see that their duration must be long duration. So it is again very important to note here that the person become criminal or he learn criminal techniques or values or ties or techniques once he has a frequent and durable contact. It means that the contact is a long contact. Okay. So frequency, duration and priority. Priority हम कहते हैं कि हम हमारी सबसे अवलियत क्या है. अवलियत से मुराद यहाँ पे होगा कि हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या नहीं होना चाह रहे. Some people has naturally dislike for those people. हमें हमें से काफी ऐसे होते हैं लेकिन उस तरबियत की बुनियाद पर वो इतने कंडीशन होते हैं, वो क्लासिकली कंडीशन होते हैं कि वो ऐसे लोगों से मिल भी जाए मजबूरी में, अगर ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, क्लास में अगर कोई ऐसा बंदा है तो उनसे अगर उनकी सलाम दुआ भी होती है लेकिन वो उसको प्रायोरिटी पर नहीं लेते, टेक इट सेकेंडरी. तो हम मजबूरी की हालत में अगर हम उनसे बात भी कर रहे हैं और सुबह शाम उनको मिल भी रहे हैं लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ और है. वो क्या है? पढ़ना, सीखना, क्या तालीम का उसूल, एक कामयाब इंसान बनना. तो उन सूरत हाल में हम क्राइम की तरफ टेम्परामेंट हमारा नहीं हो पाता बेसिकली. ओके, सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट we have take that perspective in our mind that that behavior must be on our priority list. मतलब हमारे पास एक सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम करने की लिस्ट होती है. हमें ये भी करना है, वो भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलनी है, वीडियो गेम्स भी खेलनी है, हमें पढ़ना भी है, हमें आराम भी करना है, हमें टीवी देखनी है, मूवी देखनी है. तो इन सब में से जो चीज सबसे प्रायोरिटी पे होती है सबसे पहले हम वो काम करते हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें उसमें होती है. तो यहाँ पे अगर उस बंदे में इंटरेस्ट होगा कि वो उस बंदे से इंटरेक्ट करे और सीखे क्राइम, तो नेचुरली दैट दैट बिकम सबसे वाहम बन जाएगा दैट पर्टिकुलर केस. ओके. इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा हम उसको इंटेंसली पिकअप करते हैं. लाइक इंटेंसिटी मतलब आप आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है उसमें. प्रायोरिटी तो समथिंग व्हिच इज ऑन योर पार्ट. इंटेंसिटी इज दैट आप कितना ज्यादा उसको एक्सप्लोर करते हैं, कितना ज्यादा आप उसमें डीप जाते हैं. ओके. तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा अहम होगा कि समवन ही इज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ क्रिमिनल मस्ट हैव द इंटेंस ड्यूरेशन. मतलब वो फ्रीक्वेंट कांटेक्ट भी हो ऑफेंडर के साथ, वो लॉन्ग कांटेक्ट भी हो, और वो कांटेक्ट इस सेंस में भी अहम हो कि वो कांटेक्ट किस एज में किया गया. अगर कम उम्र में किया गया तो असर ज्यादा पड़ेगा, एक बड़ी उम्र में किया गया तो असर कम पड़ेगा. तो एज, हमारी जेंडर, ये डिटरमाइन करती है कि हम किस हद तक उसमें इन्वॉल्व होंगे. तो ये चीजें भी यहाँ पे बड़े अहम रोल प्ले करती है. that person may have the influence of the criminal in a particular age. Perspective that the process of learning criminal behavior through interaction with others basically relies same mechanism. और वो mechanism क्या होगा? आपकी प्रायोरिटी पर भी वो कांटेक्ट हो, वो ड्यूरेबल भी हो, वो रेगुलर भी हो, वो फ्रीक्वेंट भी हो. किससे हो? आपके टीचर से हो, आपके पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो, किलो एसोसिएट से हो. ये नहीं हो सकता कि हम एक अच्छा बिहेवियर अलग तरीके से सीखें और एक बुरा बिहेवियर. आपको पता होगा कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, that 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 is not the phenomena which is different. एक बच्चा जब डेलिक्वेंसी में इन्वॉल्व होता है तो वो न चाहते हुए भी हो जाता है उसमें इन्वॉल्व. Who is he? Is there any problem? You can ask the question. But try not to disturb the class environment. Otherwise, I have to again remove the person. Just have to make sure you have to put your mic off. The CR is here. Mr. Zahid is here.
Yes, sir. I am here, sir. अब जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप नोट करें कि कौन लोग हैं Yes, जिनका sir. माइक माइक ऑफ ऑन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास में Yes, sure, sir. अगली क्लास में आपको को होस्ट बनाऊंगा, अगली क्लास में Yes, sir. आपको को होस्ट बनाऊंगा, तो फिर उसके Yes, sir. इसका माइक ऑफ ना हो उसको आप रिमूव कर लें, और जो सपोज करें जो सस्पेक्ट है, जो क्लास में जो आउटसाइडर है उसको रिमूव कर सकते हैं, Done. ठीक है। Thank you, sir. Done, sir. Thank you. Thank you. Continue, sir. All right. So the same process also. The last point, come to the last point. Criminal behavior could be an expression of Can you repeat the last one, please?